Now welcome back to the second session for the day, which is related to the SharePoint security management. So my name is Adnan Amin and I am a Microsoft MVP for Office Apps and Services. And I having over 16 years of experience of working on Microsoft technologies. I started my career as a developer and I'm a Microsoft MVP for majorly for SharePoint, and I have been working on SharePoint for past over 13 years now. And I'm also a Microsoft certified trainer for past 14 years now, and was Microsoft certified MCT regional lead for Pakistan also from 2012 to 2017. And you can reach out to me on Twitter, on my blog, or over social media handles like on MS Tech Talk Facebook page or LinkedIn pages. And today we will be discussing about the security on SharePoint, and this is our agenda for today, where I will share you the detail that why we need a secure content, what type of content we have in SharePoint, and how to secure them. This is the high-level agenda for the session on for SharePoint Online, and just to clarify that this is for SharePoint Online, but we have the same security model for on-premise environments of SharePoint. So on this discovery series, we are running a set of sessions, and in last 2 weeks we discussed on the Microsoft 365 dev tenant, that how to create that dev tenant, and then we discussed about the information architecture design, where we share the details that how the content, what is the type of the contents, and how to take the information from the business users, what is the role of end users, the business owners on that one, and how you can build up a SharePoint site based on the requirements of the users, and what information would you need from the information architecture perspective. Today we will discussing detail about the SharePoint site security, that how to manage content, how to assign permissions, how to authorize content, and how to manage the settings at the tenant level, and what is configuration required at the site level. And in next coming weeks, we will be discussing about the Power Automate integration with the SharePoint Lace, and then Microsoft Form, PowerPoint, and SharePoint List integration. And then we will jump into the and dev tricks. So continue joining us on the discovery series. So now let's begin. So security overview. Security has always been an important topic, and even more nowadays, because everyone is talking about data and security. And even if you are using any social media handles, you know the importance of security. Even in Facebook, if you are posting something, you know that what is publicly available, and what the content you want to share with the specific users, specific your friends. And but in terms of SharePoint, what we want that in a SharePoint site, we want our users to securely access the environment and share files within the peers. And in this session, we will look at the most important settings in Microsoft 365, which will help you to secure SharePoint online environment, and see how it involves more than how it will involve that you do not need the IT admins, and you can use it, you can manage it by yourself. So why we need secure content management? अच्छा, यहाँ पर दो चीजें आती हैं कि नॉर्मली एक कंटेंट होता है जो कि पब्लिक होता है, नॉर्मली जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा था वो या वेबसाइट्स पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन तो वहाँ पब्लिक कंटेंट अवेलेबल होता है, एनीवन कैन रीड इट. एंड विद इन इन्वायरमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी कंटेंट ऐसा होता है जो कि कोई भी यूजर आके रीड कर सकता है. अच्छा, उसके बाद कुछ सिक्योर कंटेंट है विच स्पेसिफिक पीपल आर अलाउड टू रिव्यू, इनके उनका जो हर बंदा रीड नहीं कर सकता, लेकिन स्पेसिफिक यूजर्स रीड कर सकते हैं. लाइक जिसमें भी आपने इंफॉर्मेशन अभी जो प्रीवियस सेशन देखा था, उसके अंदर भी आपने देखा था कि किस तरीके से सिक्योर हैंडलिंग की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन वाइज एक्सेस, कि किस तरीके से उसको सिक्योर करना है, और जो है पब्लिकली कैसे किसने कंटेंट को मैनेज करना है. सो
दिस इज यानी कि आपने डेटा को प्रेजेंट किस तरह करना है और किस तरह से कंटेंट को सिक्योर करना है। अच्छा, फिर सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं या पब्लिकली एक्सेस डेटा की बात कर सकते हैं, तो उसमें 2-3 तरह की परमिशंस आती हैं कि रीड का एक्सेस है, समवन हैव फुल एक्सेस ऑन द कंटेंट, यानी कि मेरे पास अगर फुल एक्सेस ऑफ कंटेंट है, मैं उसमें मजीद ऐड कंटेंट ऐड कर सकता हूँ, उसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, किसी को ऑथराइज कर सकता हूँ, उसके ऊपर परमिशन दे सकता हूँ रीड की या कंट्रीब्यूट की। और एक जो है एडिट और कंट्रीब्यूट, कि मैं किसी भी कंटेंट को मॉडिफाई कर सकूँ, उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन करनी है वो कर सकूँ। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी जगह पे किसी भी कंटेंट मैनेजमेंट के लिए। और शेयरपॉइंट के अंदर भी ये रोल्स यूटिलाइज होते हैं, विद डिफरेंट वे ऑफ परमिशंस हैं इसके अंदर भी। ठीक है। So, and why we need this content management? Because we have the content, we have the information, which some information which want to share as an organization, and some we don't want to share. और इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफ यू वेंट टू द अकाउंट डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट, दे हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर तमाम डेटा होता है तमाम स्टूडेंट्स का, बट नॉट एवरीथिंग इज टू बी शेयर्ड। उनके ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज होती हैं, अकाउंट्स का अपना डेटा होता है, वो हर चीज पब्लिकली शेयर नहीं करते, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ती है। तो उसे किस तरह से मैनेज करना है और फिर किस तरीके से किन लोगों को इसको एक्सेस होगा कि टॉप मैनेजमेंट के कौन कौन से लोग उन पे कौन से रीड कर सकते हैं, कौन से उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, डिफरेंट यूजर्स के रोल्स होते हैं वो, यानी उसके लिए हम सिक्योर कंटेंट मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है। नाउ अगर हम शेयरपॉइंट की अंदर बात करें तो शेयरपॉइंट का डेटा किस किस फॉर्म में होता है? फाइल्स, फोल्डर्स, जिस रियल लाइफ में अभी जो हम बात कर रहे थे कि आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, आप अगर मैं फिजिकल फाइल्स की बात करूं तो उसके अंदर भी हमने लॉकर्स के अंदर फाइल्स रखे हुए होते हैं, फोल्डर्स के अंदर। तो इसी तरह शेयरपॉइंट के अंदर भी कंटेंट हमें फाइल्स को डिफरेंट ऑर्गेनाइज करना इस तरह करना पड़ता है कि फोल्डर्स के अंदर है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज के अंदर है, उसे सिक्योर करना। वेब पेजेस हैं, वेब पेजेस का कंटेंट जो है हमें पब्लिकली एक्सेसिबल देना है, विद इन टीम एक्सेसिबल देना है, या फिर डॉक्यूमेंट, ये किसी तरह का भी कंटेंट हो सकता है। इसके अलावा डेटा है डिफरेंट टाइप का, जिस तरह आपके सीक्वल टेबल्स के अंदर डेटा होता है वो आप प्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही डेटा अवेलेबल होता है आपके लिस्ट के अंदर या शेपर्ड लिस्ट के अंदर, विच यू वांट टू शेयर। लाइक जिस तरह अब ये करंट इवेंट हम लोगों ने क्रिएट किया है माइक्रोसॉफ्ट 365 में, इसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर की गई है डिफरेंट, यानी जो तमाम उन लोगों के साथ जो रजिस्टर्ड है। ठीक है, बट इट्स आल्सो शेयर्ड विद द प्रेजेंटर, बोथ हैव डिफरेंट एक्सेस। As a presenter, we can share the content with you, and as a read access, you can only attend the event, you can only view it. अच्छा, अब इसके अंदर जो कंटेंट की सिक्योरिटी है, टाइप्स हैं, इसके अंदर एक डेटा की जो भी डिस्कस की है, सीएमएस होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं डिफरेंट। अब ये नॉर्मल होता है कि आपको पेजेस के ऊपर जो कंटेंट है उसको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उसको ऑथराइजेशन की परमिशन देनी है। एक कहलाता है ईसीएम, इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट। ये भी बेसिकली सीएमएस ही होता है, लेकिन व्हाई वी कॉल इट ईसीएम, बिकॉज इसके अंदर आपकी वीडियोस आ जाती हैं, वीडियोस कंटेंट आ जाता है, इसके अंदर आपका ऑडियो कंटेंट आ जाता है, इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, पावर पॉइंट्स, तो हर तरह का कंटेंट इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेटा है वो बेसिकली आपका इसी बेस्ड है। और कंटेंट के ऊपर आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगी व्हाट इज कंटेंट एंड व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट इज, व्हाट शुड बी, ये कंटेंट हम क्यों मैनेज करें, क्यों रिक्वायर्ड है इसकी कंटेंट। अच्छा, कंटेंट मैनेजमेंट इन शेयरपॉइंट, इसके अंदर जो है मैं प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू को भी क्लियर करता हूँ कि जब भी हम कंटेंट रखते क्यों हैं, कि हमने कोई कंटेंट ऐड किया है ताकि उससे क्रिएट, यानी कि कंटेंट शेयरपॉइंट में क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और दैट कंटेंट कुड बी स्टैंडर्ड ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट की जो डॉक्यूमेंट्स ऑफिस का प्लेटफॉर्म है उसके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपकी टेक्स्ट फाइल्स हो सकती हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, आपके इवेंट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स हो सकते हैं, अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं, कंपनी की न्यूज़ हो सकती हैं। सो ये दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, यानी कि जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब जब कंटेंट पे जब हम काम करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हु इज़ अलाउड टू व्यू द कंटेंट? आप लोगों के साथ अक्सर ये होता होगा कि फाइल डिलीट होगी, फाइल का एक्सेस नहीं मिल रहा, यानी कि हर एक को परमिशन नहीं होनी चाहिए कि फाइल्स को डिलीट करने की। और फॉर एग्जांपल इफ मल्टीपल पीपल हैव कंट्रीब्यूट एक्सेस ऑन द कंटेंट, मैंने एक डॉक्यूमेंट टाइम शीट मैनेज करता हूँ, उससे मुख्तलिफ लोग इनपुट देते हैं। अब मुझे चेक करना है कि किसने क्या मॉडिफिकेशंस की, वो ट्रैक करना,
मुझे अब ये इसमें कंटेंट के रिव्यूअर्स भी होते हैं। अगर आपने कभी ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखी हो या अगर शेयरपॉइंट पे अगर आपको इफ यू हैव ऑलरेडी प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो आपको पता होगा कि यू कैन sorry you can make the changes on a document and submit for review. ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल है फिजिकल लाइफ के अंदर कि आपने कोई नोटिफिकेशन निकालना है, उससे पहले उसकी ये जो है अनाउंसमेंट से पहले आपको उसकी साइन वगैरह करवाना पड़ती है, उसका अप्रूवल ये नहीं करवाना पड़ता है, जिसे हम ड्राफ्ट वर्जन कहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही शेयर पॉइंट के अंदर भी आप डॉक्यूमेंट्स के ड्राफ्ट वर्जन क्रिएट करेंगे, उन्हें सबमिशन से इससे पहले कि आम तमाम लोगों को एक्सेस मिले। यू कैन गेट अप्रूवल वर्कफ्लोज ऑन दोस कि वो अप्रूव हो, डिजिटली अप्रूव हो और उसके बाद वो कंटेंट अवेलेबल हो। फिर अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं, उनके कंटेंट के मेजर माइनर वर्जन्स अवेलेबल हो, और अगर इफ यू आर वर्किंग ऑन सम फाइल एंड यू डू नॉट वांट anyone else to modify that file, you can check out that file. अब वो उस फाइल पे एक तरह का लॉक लग गया है और यूजर्स कैन ओनली सी द ओल्डर वर्जन ऑफ द फाइल। जब आप उसमें चेंजेस अपनी मर्ज कर देंगे, चेक इन करेंगे फाइल को, देन दैट फाइल विल बी अवेलेबल टू द यूजर्स। अच्छा, इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है शेयर पॉइंट डॉक्यूमेंट्स विद अच्छा शेयरिंग। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यानी कि ये आ रहा था परमिशन वाली साइड कि आपने कंटेंट को शेयर करना है दूसरे यूजर्स के साथ। अब कुछ यूजर आपकी टीम का पार्ट होंगे, कुछ एक्सटर्नल यूजर भी हो सकते हैं। आपने परमिशन देनी है यूजर्स को कि रीड यानी कि वो रीड कर सकें, राइट कर सकें, जो भी परमिशन आपने देना चाहें वो कंटेंट की यानी कि शेयर करके आप वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। और और इसके अलावा कंटेंट के अंदर मेटा डेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है कि कंटेंट आप जिस तरह का भी कंटेंट है, जो either it's a document, it's a video or whatever the type of content is it, आपने उसमें उसको रीड किस तरह करना है कि कंटेंट का एक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्च हम लास्ट वीक भी हम लोगों ने कुछ टॉपिक डिस्कस किया था इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के अंदर की क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं साइट से, तो उसमें मेटा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है which will help you कि किस टाइप का कंटेंट है। even for the videos if you want to add some tagging for the videos which will help you on searching। और इसके अलावा बाय डिफॉल्ट जो टैग्स अवेलेबल हैं कि हु क्रिएटेड द फाइल, व्हेन इट वाज क्रिएटेड, व्हेन इट वाज मॉडिफाइड, हु मॉडिफाइड द फाइल, फिर डिफरेंट वर्जन्स के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है और ऑथर की डिटेल अवेलेबल है। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है एसोसिएटेड मेटाडाटा डॉक्यूमेंट की सर्चिंग को आसान करता है। और अगर किसी को साइन किया डॉक्यूमेंट मॉडिफाई करने के लिए या अप्रूवल के लिए वो तमाम डिटेल्स में अवेलेबल हैं। अच्छा, इसके अलावा इफ यू हैव यूज वन ड्राइव, आपको काफी अच्छा आइडिया होगा। इवन आपने विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर भी देखा होगा कि आप फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कॉपी करने के लिए आप सिंपल कॉपी पेस्ट भी करते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर देते हैं, और मल्टीपल फाइल्स भी। तो ये अवेलेबल है शेयरपॉइंट के अंदर कि आपकी इजीली फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये उस फाइल को ओवरराइट करेगा। अब पॉसिबिलिटी है कि आपने जो फाइल ओवरराइट की है वो सेम नेम की है, लेकिन जो है इनके नॉर्मली जो बल्क में फाइल्स आप ड्रैग कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि उस नाम से कोई वो फाइल भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो। अगर आपने गलती से उसे ओवरराइट कर दिया और मे बी दैट बोथ आर डिफरेंट फाइल्स, ठीक है, जस्ट अ मिनट, तो बोथ आर डिफरेंट फाइल्स। और अब आपने क्या करना है, उसके वर्जन सेटिंग में जाएंगे, उसमें वर्जन में जाके पुरानी फाइल को भी रिस्टोर कर सकते हैं और रिस्टोर विद अ डिफरेंट नेम भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये है शेयरपॉइंट कंटेंट मैनेजमेंट। शेयरपॉइंट किस तरह कंटेंट मैनेज करता है, इसको अब हम लोग जब अभी डेमो में करवाऊंगा तो उसमें आपको शो भी करूंगा कि किस तरीके से चीजें मैनेज होती हैं। लास्ट वीक भी कुछ चीजें शेयर की थी, लेकिन आज थोड़ा ज्यादा डिटेल के अंदर हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम आते हैं नेक्स्ट, परमिशन लेवल्स। अच्छा, अब ये बाय डिफॉल्ट परमिशन लेवल जो शेयरपॉइंट में डिफाइन होते हैं वो 6 डिफाइन होते हैं डिफरेंट, यानी ग्रुप्स को जो यानी कि जो डिफरेंट रोल्स आप समझ लें परमिशन लेवल्स के जो कि शेयरपॉइंट के अंदर अवेलेबल हैं, बट वी कैन फर्दर कस्टमाइज देम। अच्छा, इनमें कौन कौन सा फुल कंट्रोल, नॉर्मली फुल कंट्रोल विद द ओनर ऑफ द साइट, ये जिसके पास तमाम का तमाम कंटेंट क्रिएट करना है, कुछ लिस्ट एंड लाइब्रेरी क्रिएट करनी है, उससे डिलीट करना है, कुछ साइट क्रिएट करनी है, उस तमाम का जो है ना एक्सेस अवेलेबल है। देन रीड एक्सेस है कि रीड की परमिशंस यूजर्स को देना कि हु विल हैव द रीड परमिशंस ओनली ऑन द कंटेंट ऑफ द साइट। फिर एडिट की परमिशन। अच्छा, एडिट और कंट्रीब्यूट यहाँ पे अगर आप देखें
तो एडिट एंड कंट्रीब्यूट, इनकी परमिशंस आपको तकरीबन मिलती जुलती नजर आएंगी कि क्रिएट, चेंज, डिलीट कंटेंट एंड लिस्ट आइटम्स। सो अच्छा, एक डिफरेंट है जो एडिट में लिखा है क्रिएट, चेंज एंड डिलीट लिस्ट और मॉडिफाई आल्सो द लिस्ट आइटम्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जो कंट्रीब्यूट में लिखा हुआ है डिलीट, अपडेट डॉक्यूमेंट्स एंड लिस्ट आइटम्स। सो ये एक थोड़ा डिफरेंट है शेयरपॉइंट की टर्मिनोलॉजी के अंदर। बेसिकली नॉर्मली अगर जो है हमें लगता है एक जैसी चीज है, लेकिन शेयरपॉइंट के अंदर जो ऑनर के पास परमिशंस हैं कंटेंट की, तो बिल्कुल वैसे ही एडिट परमिशंस है, थोड़ी सी लिमिटेड उससे, जिसमें आप लिस्ट जो होती हैं, जो कंटेंट होल्डर्स होते हैं, आपकी ब्लॉक्स होते हैं, उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं एडिट परमिशंस वाले। तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव सीन दिस रिक्वायरमेंट दैट दे डोंट वांट यूजर्स to have they can create any of the list they need। so हमें जो एडिट एक्सेस को चेंज करना पड़ता है कंट्रीब्यूट एक्सेस के अंदर। अच्छा, लिमिटेड एक्सेस वो है जब आप किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को किसी के शेयर करते हैं तो दे ओनली हैव एक्सेस टू दैट स्पेसिफिक एरिया। और डिजाइन परमिशन नॉर्मली अब बहुत कम यूज करते हैं, ये जो है आल्सो सिमिलर टू एडिट परमिशंस, बट नॉर्मली प्रीवियसली ये ऑन प्रेमिस में यूज होती थी ज्यादा, लेकिन अभी भी अवेलेबल है। ये साइट की ब्रांडिंग वगैरह इन चीजों के लिए आती है। अच्छा, इसके अलावा अब सिक्योरिटी के लेवल्स हैं। एक तो टॉप लेवल साइट सिक्योरिटी लेवल है कि आपने साइट लेवल पे सिक्योरिटी मैनेज की। अब इट्स रिक्वायरमेंट की जो हम लोग बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी की कुछ कंटेंट पे जो है कुछ लोगों को एक्सेस है, मॉडिफाई है, कुछ को नहीं है, तो वो किस तरह से मैनेज करना है। वो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी लेवल पे भी हो सकती है सिक्योरिटी मैनेज, फिर फोल्डर लेवल पे भी सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट लेवल पर भी। अच्छा, लेट मी जंप इनटू द SharePoint site first to show you that how the security is working on SharePoint site level, document level, and library level. Then we will come to the settings and configuration details. Let me share the browser with you. So अच्छा, ये मेरा SharePoint का टेनेंट है, जो कि डेमो टेनेंट है, जिसके ऊपर मैं आपको वॉक थ्रू करवाऊंगा। अच्छा, मैं कोई भी एक SharePoint साइट को ओपन कर लेता हूँ, जिसमें मेरे ख्याल में रूट साइट पे जाता हूँ। दिस इज माय रूट साइट, दिस इज द SharePoint साइट। अगर हम लोग आते हैं साइट परमिशंस के अंदर, या आप यहाँ से साइट परमिशन देख सकते हैं, यहाँ पे यूजर को परमिशंस वगैरह यानी कि अवेलेबल हैं। अच्छा, एक तो ये क्विक लॉन्च है, इधर से आप यूजर्स की साइट ओनर्स, ये 3 सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं कि जो हम लोग परमिशन डिस्कस कर रहे थे कि फुल एक्सेस, लिमिटेड कंट्रोल, नो कंट्रोल, ये जो जिस तरह भी कस्टमाइज की गई परमिशन वो आ रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो इसमें यूजर्स आ रहे हैं कुछ, ठीक है, ये सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, बिल्कुल वैसे ही इधर हैं और यहाँ भी हैं, ठीक है। अब मैं अगर आता हूँ शेयरिंग सेटिंग्स वाली चीजें, अब मैं इसमें आता हूँ एडवांस सेटिंग्स के अंदर। अब ये जो सिक्योरिटी ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, इसके इनके अंदर कुछ मेंबर्स होंगे, यहाँ पे इनकी ये परमिशंस अवेलेबल है कि इस साइट के ऊपर क्या है। अच्छा, ये है साइट लेवल परमिशंस, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही इस साइट का ये कंटेंट है। ये अगर मैं साइट के कंटेंट में जाऊँ, लेफ्ट नेविगेशन पर भी आ रहे हैं, एंड if we go here, I can show you these are the document libraries. You can see the type of the content is a document library, and similarly we have some lists which have a type of list. अगर मैं किसी लिस्ट में जाऊँ तो इसमें टेबुलर फॉर्म में डेटा होगा, like this one, and और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइल्स, जो माइक्रोसॉफ्ट फाइल, जो किसी भी टाइप का कंटेंट हो सकता है, कुड बी पिक्चर और वीडियो और ऑडियो फाइल, कुछ भी, एनी टाइप ऑफ कंटेंट। अच्छा, अब आते हैं सिक्योरिटी के ऊपर इसकी भी। अगर मैं यहाँ पे इसकी परमिशन पे जाता हूँ साइट की, इस डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी की सेटिंग्स के अंदर जाते हैं। अच्छा, साइट परमिशन है, यहाँ पे लाइब्रेरी सेटिंग्स आ रही होंगी। इफ यू गो टू द लाइब्रेरी सेटिंग्स फ्रॉम हियर, I will take you to the permissions for this document library, and now you can see that it's having a unique permissions, और ये साइट की परमिशंस को ऐड नहीं कर रहा। अब ये इसको किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं एक यूजर ऐड करता हूँ, अदनान।
मैं इस यूजर को ऐड करता हूँ और जो है मैंने इसको एक्सेस को परमिशन दे रहा हूँ, एडिट परमिशन दे रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर। अच्छा जी, इस यूजर के पास एडिट परमिशन आ गई और अब मैं आता हूँ इसकी इस साइट को मैं ना सेपरेट खोलता हूँ एक सेपरेट टैब के अंदर, सिर्फ डिफरेंस शो करने के लिए। मैं जाता हूँ इसकी टॉप लेवल साइट के ऊपर दोबारा। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे आपको ये यूजर नजर आएगा, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, टॉप लेवल साइट के ऊपर वो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी की परमिशंस में। मैं वापस आता हूँ सिक्योरिटी परमिशंस ऑफ द साइट वंस। अच्छा, यहाँ पे देखें आपको मुझे वो यूजर नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कस्टमाइज की है डॉक्यूमेंट लेवल की परमिशन, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी लेवल की परमिशंस। ठीक है। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ इधर, किसी भी फोल्डर पे क्लिक करूँ और फोल्डर की परमिशंस को अगर मैंने मॉडिफाई करना है, मैनेज एक्सेस, और इसकी एडवांस सेटिंग्स में जाता हूँ मैं। इसमें अगर आप देखें तो इसमें अदनान अमीन आ रहा है जो मैंने यूजर क्रिएट किया था। अब इसकी मैं अगर परमिशन जाऊँ तो ये भी जो है इसकी ये जो है इसकी भी यूनिक परमिशन है। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, ये क्योंकि मैंने शायद मॉडिफाई की होगी। मैं डिलीट यूनिक परमिशंस करता हूँ। ये पहले से ही शायद मैं टेस्टिंग करते हुए किसी वक्त मैंने किया होगा। तो आप देखें वही ग्रुप जो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी लेवल पे थी परमिशन उस वो आ गए और इसके अंदर अदनान भी आ गया है। अच्छा, अब इसकी मैंने यूनिक परमिशन करनी है तो मैं स्टॉप इनहेरिटेंस करूंगा एंड आई कैन एड यूजर्स विद एनी परमिशन। और एक रिक्वायरमेंट ऐसी भी आ सकती है कि मैं मेंबर्स को इसमें रीड एक्सेस देना चाहता हूँ। व्हाट आई नीड टू डू, मैं इसे मॉडिफाई करूंगा और इसको करूंगा एडिट और इसकी परमिशन चेंज कर दूंगा। ठीक, इजीली जिससे मैं ऐसे ही कर देता हूँ जो। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट फोल्डर लेवल पे या लाइब्रेरी लेवल पे एडिट और कंट्रीब्यूट का रोल बिल्कुल सेम है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी लेवल पे लिस्ट वगैरह क्रिएट नहीं होती, तो वो जो है इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैं इसको देता हूँ रीड की एक्सेस, तो आपको नजर आ जाएगा कि इसके पास मेंबर्स के पास भी रीड की परमिशन हो गई है। ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ पीछे। अभी हम लोग ने सेटिंग की है ये, तो अभी तक व्हाट वी हैव सीन फॉर सो फॉर नाउ, we have seen that the permissions settings at the site level, and then we have seen the permission settings at the document library level, then at the folder level. मैं आता हूँ वापस, office documents is the name of the document library or not the folder, this is the folder. अच्छा, अब ये है what is the folder, document library itself a container, it's a container and it could have multiple folders and files. Each folder could have multiple files. अब इन तमाम का परमिशन लेवल अगर ये इनहेरिट कर रहे हैं सेम टॉप लेवल परमिशन जो इनके ऊपर है तो वो जो है नजर आ रहा होगा। ठीक है। और अगर मैं किसी भी फोल्डर पे जाता हूँ, किसी फाइल पे जाता हूँ जिसमें मैं इस फाइल की परमिशन चेक करूँ, मैनेज एक्सेस, ये मुझे इस फाइल की तमाम सिक्योरिटी दिखाया लेकिन मैं एडवांस में जाता हूँ। लेट्स गो टू द एडवांस सेटिंग्स और यहाँ पे देखें इट आल्सो इनहेरिटिंग द परमिशन फॉर द फोल्डर। ये टॉप लेवल परमिशंस को एक्सेस कर रहा होगा, यहाँ पर आ भी रहा है। और इफ और मैं इसकी परमिशंस को भी कस्टमाइज कर सकता हूँ। ठीक है। एंड यू कैन चेक द परमिशन ऑफ एनी यूजर फ्रॉम दैट बटन ऑन द रिबन। अच्छा, मैं वापस आता हूँ प्रीवियस इसके ऊपर। अब ये थी परमिशन लेवल जो कि मैं डिस्कस कर रहा था साइट्स के ऊपर। और इफ यू वांट टू शेयर द डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने एक और शेयरिंग वाली जो चीज डिस्कस की थी, क्लिक ऑन शेयर। ये फाइल है, फोल्डर है, अगर मैं शेयर करने जा रहा हूँ और डिफॉल्ट परमिशन लेवल जो है इसका आ रहा है पीपल इन द, ये एडिट कर सकते हैं। मैं अगर चेंज करना चाहूँ विद स्पेसिफिक परमिशंस, मैं किसी भी यूजर, किसी स्पेसिफिक यूजर को ये इनके के साथ शेयर कर सकता हूँ। और अलाउ एडिटिंग करना है या मुझे सिर्फ क्या जो है वो उनको देना है
क्या नाम है रीड के एक्सेस देने तो मुझे अनचेक करना होगा। ठीक है, डिफरेंट सेटिंग्स अवेलेबल हैं इधर, और मैं यूजर का जो है ईमेल एड्रेस लिखूंगा, उसके बाद लिंक से ये नहीं चला जाएगा, और मैं जो है कस्टमर मैसेज भी भेज सकता हूँ और कॉपी लिंक करके लिंक भी डायरेक्टली शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, ये नंबर ऑफ यूजर्स आ रहे हैं कि किन किन के साथ ये फाइल शेयर है राइट नाउ, हु हैव द एक्सेस ऑन दिस फाइल। तो सिमिलरली फोल्डर लेवल पे भी परमिशंस वी कैन मैनेज द सिमिलर फैशन, और ये द साइट लेवल परमिशंस थी। नाउ वी विल जंप इनटू the configuration setting at the site level, and we will also discuss the SharePoint level, that बाकी permissions किस तरह security जो है किस तरह से मैनेज होती है SharePoint साइट पे। अच्छा, tenant level की security setting I'm not covering in this one। मैं आता हूँ SharePoint admin center पर, ऑलरेडी मेरे पास खुला हुआ है यहाँ पर, so I will go to, so these are the list of the sites. On the very first session, I have given you overview about the admin center, SharePoint admin center. Now here we will go to the policies, sharing settings. अच्छा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कंटेंट किसी से शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज द लीज। अच्छा, वन ड्राइव इज डिपेंडेंट ऑन SharePoint सिक्योरिटी सेटिंग्स के लीज परमिसिव सेटिंग क्या है, यू कैन ओनली शेयर द कंटेंट विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, देयर कुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सिक्योरिटी काफी which where you don't want to allow any external user to have access to any of the content, any type of access। तो लीज यानी कि ये परमिसिव यानी कि आपने रखा है इसको। बट यहाँ सिनेरियोज होते हैं कि आपने कंपनीज आर शेयरिंग द कंटेंट विद देयर वेंडर्स, विद देयर कस्टमर्स। तो उसके लिए क्या करना होगा? अब एक तो एनोनिमस है बिल्कुल टॉप लेवल। इसका मतलब क्या है कि आप anyone can access the content which is shared with them। It doesn't mean कि the content will get unsecured। It means that you can share the file and you do not need them to sign in to your system। आप एक स्पेसिफिक ईमेल यानी कि जनरेट इंक्रिप्टेड ये यूआरएल उनको देंगे, या कोई ये कोड देंगे या पासवर्ड देंगे उनको, वो उसके थ्रू वो एक्सेस कर लेंगे। एक ऑप्शन है with new and existing guests। It means that whenever you आप किसी भी यूजर का ईमेल एड्रेस देंगे इसको, when they access the file, the system Microsoft 365 will ask them to sign in to the tenant, और आपका AD connect के थ्रू वो उनका ऑथेंटिकेशन होगी every time। अगर if they are already an existing Microsoft 365 user, तो भी उनको लॉगिन करना पड़ेगा, उनका यूजर जो है आपके AD कनेक्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, और वो एज ए गेस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाएंगे। और और एक ऑप्शन है एग्जिस्टिंग गेस्ट ओनली, कि पॉसिबिलिटी है कि आपके माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट यूजर्स ऑलरेडी इनके वो को एक्सेस मिला हो, सो यू ओनली वांट टू शेयर विद देम। अब नॉर्मली मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन दिस इज अ मोस्ट यूज जो है परमिशन लेवल फॉर द एक्सटर्नल शेयरिंग परमिशन फॉर द SharePoint एंड वन ड्राइव, जहाँ पे ये इनके वन ड्राइव के थ्रू भी आपको जो है। अच्छा, वन ड्राइव के अंदर मैं अगर इफ SharePoint is set to this permissive level, तो SharePoint वन ड्राइव उससे लीस्ट हो सकता है लेकिन अबव नहीं हो सकता। यू कैन सी दिस, अगर मैं नीचे करूंगा तो नीचे हो जाएगा, बट उससे ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा, इसके अलावा वी कैन आल्सो लिमिट टू डोमेन, कि हम किसी स्पेसिफिक डोमेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच डोमेन आर अलाउड और कौन से डोमेन हमने ब्लॉक करने हैं, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। ठीक है, कि मैं उन डोमेन्स का नाम देता हूँ ताकि उन डोमेन से जब भी कोई यूजर लॉगिन करेगा उससे मैं जो है अलाउ करना चाहूँ। So these are the two options, that specific domains are allowed, or you can allow specific domains which are blocked। Like मैं block कर देता हूँ let's block gmail.com, कि ये इस ब्लॉक से कोई भी लॉग यानी ईमेल आईडी से कोई भी लॉगिन होगा उसको ये अलाउ नहीं होगा, यानी हम फाइल शेयर नहीं कर सकते किसी भी एक्सटर्नल यूजर के साथ। अच्छा, मैं इसे कैंसिल करता हूँ। और these are the some other जो है permissions for the guest sharing, external sharing, allow any security group, ये यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह हैं। और लाइक टोकन अगर आप क्रिएट करने का कोई अपने फाइल एक्सेस के लिए जो लिंक दिया है वो कितने दिन तक एक्टिवेट रहेगा, वो आप इसमें ड्यूरेशन यहाँ पे। और अच्छा, ये है टेनेंट लेवल सेटिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन लेवल सेटिंग्स तमाम साइट्स की।
ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या आती है कि नॉर्मली अक्सर कंपनीज डू नॉट सेट यानी डिफॉल्ट सेटिंग एट द टेनेंट लेवल, दे सेट अप देम ऑन द साइट लेवल, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कुछ साइट्स आपकी हाईली सिक्योर्ड हो, व्हिच यू डोंट वांट टू शेयर विद एनीवन, तो उनकी हम परमिशन सेपरेटली शेयर कर सकते हैं। और ये आपकी कुछ मजीद परमिशन फाइल एंड फोल्डर लिंक्स के आपकी डिफॉल्ट सेटिंग क्या होगी, ओनली पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफॉल्ट है। और ये आप जो अच्छा ये ऑप्शन डिसेबल है, एनीवन विद द लिंक, ये किस लिए डिसेबल है? क्योंकि मैंने इसका परमिसिव लेवल जो है न्यू एंड एग्जिस्टिंग केस की है। अगर मैं इसको एनीवन कर दूंगा तो ये भी इनेबल हो जाएगा, यू कैन सी दैट। और क्या क्या परमिशंस हो सकती हैं, आप सिर्फ व्यू को देना चाहते हैं, फोल्डर्स को भी क्या परमिशन देना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं अगर एनोनिमस के केस में। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। अच्छा, ये कुछ और मजीद फर्दर सेटिंग्स हैं कि शो ऑनर्स टू नेम्स ऑफ पीपल हु व्यूड द फाइल्स बाय डिफॉल्ट, ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने ही इनेबल किया हुआ है, क्योंकि SharePoint admin center is the admin center for both OneDrive and SharePoint settings. Let site owners choose to display names of the people who viewed the files or pages in SharePoint. अच्छा, इसी तरह एक्सेस कंट्रोल है जो कि प्रीवियस सेंटर में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस अनमैनेज्ड डिवाइसेस के पास यानी कि अच्छा ये व्हाट इज अनमैनेज्ड डिवाइसेस, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम के तमाम डिवाइसेस जैसे मशीन हैं आपकी, कोई लैपटॉप्स, ये टैब्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट नहीं है। यानी कि नॉर्मली हम जिस साइन करते हैं डोमेन बेस्ड, डोमेन कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं सारी। अगर फॉर एग्जांपल मेरा फोन जो है, माय मोबाइल इज नॉट कनेक्टेड विद माय डोमेन, और मैं उससे कोई कंटेंट करता हूं, अगर इफ इट्स ए रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट देन आई कैन नॉट एक्सेस इट यूजिंग माय मोबाइल डिवाइस, बट इफ आई अलाउड इट तो मैं एक्सेस कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल ये मशीन किसी डोमेन से कनेक्टेड नहीं है, मैं यहाँ कोई डॉक्यूमेंट एक्सेस करता हूँ, तो वी कैन रिस्ट्रिक्ट द डिवाइस, इनके इससे वेब पे एक्सेस हो, क्लाइंट एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस ना हो, कोई बुकमार्क उसमें ऐड कर सकते हैं। हम इसमें सेंसिटिविटी लेवल्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके थ्रू ये एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट कंटेंट के लिए। अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ शेयरिंग सेटिंग्स के ऊपर। ये हम लोगों ने टेनेंट लेवल की सेटिंग्स हम लोगों ने देखी है कुछ। अब आता हूँ मैं साइट के ऊपर, एंड इफ आई शो यू हियर, मैं जाता हूँ, मैं क्या मैं उसी सेम साइट पे जो कि हम लोग ऑलरेडी देख लेते हैं, जो रूट साइट कलेक्शन है, इसके अंदर पॉलिसीज में जाएंगे। यहाँ पे आ रही है एक्सटर्नल शेयरिंग सेटिंग जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब इसके अंदर जो परमिसिव लेवल था, क्योंकि डिफॉल्ट में परमिसिव लेवल जो है न्यू एंड एग्जिस्टिंग तक है, तो उससे लीस्ट ही ये हो सकता है, उससे अब नहीं जा सकता। अगर वहाँ डिफॉल्ट के अंदर मैं सेटिंग कर दूंगा एग्जिस्टिंग गेस्ट ओनली, तो फिर हमारे पास सिर्फ ये दो ऑप्शन अवेलेबल होंगे। मैं फॉर एग्जांपल दिस इज हाईली सिक्योर्ड साइट, तो मैं इसमें गेस्ट अलाउ नहीं करना चाहता, तो मैंने इसमें कर दिया ओनली पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अच्छा, डोमेन है ms desktop demo dev, और इसके अंदर बाकी परमिशन सेम एज द ऑर्गेनाइजेशन लेवल सेटिंग, मैं इसको भी मॉडिफाई कर सकता हूँ कि डिफॉल्ट क्या होगा। एंड आल्सो वो यानी कि डोमेन रिस्ट्रिक्शन करनी है वो तमाम, क्योंकि अगर मैं ये करता हूँ एग्जिस्टिंग गैस, यहाँ पे मैं डोमेन रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता हूँ, लिमिटेड शेयरिंग बाय डोमेन। ठीक है। नाउ इफ आई गो बैक हियर, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, इससे पहले मैंने अभी तो यूजर ऐड किया था यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी सेटिंग्स के अंदर, मैं वापस एडवांस में आता हूँ, और आप देखें वो तो यूजर तक यूनिक परमिशन है, लेकिन वो यूजर जा चुका है। अब मैं वापस से एक्सेस ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा उस यूजर को ऐड करना। और जब मैंने कोशिश की कि ईमेल एड्रेस सेंड करने की, तो ही सेड कि योर ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अलाउ शेयरिंग विद दिस यूजर्स, गो टू द एक्सटर्नल शेयरिंग सेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। अब ये मैंने डिसेबल का की है साइट कलेक्शन लेवल पे। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड मैसेज जो कि मुझे मिला है,
अच्छा, मैं वापस आता हूँ इधर, तो यहाँ पर आके साइट की सेटिंग्स में आता हूँ, वो अलाउ कर देता हूँ न्यू एंड एग्जिस्टिंग गेस्ट। तो यहाँ आके मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखें कि ऑलरेडी वो पहले से यूजर ऐड किया होता तो वो शो होने लग गया, क्योंकि वो ऑलरेडी यानी कि वो हैव गिवन द परमिशन। तो यहाँ पर अगर मैं दोबारा अगर जाके चेक करूँ, तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ यूजर को। इसने मैसेज दे दिया ही आउटसाइड यूर ऑर्गेनाइजेशन, बट मुझे अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हाउ वी आर मैनेजिंग द एक्सटर्नल शेयरिंग सेटिंग्स विद इन शेयरपॉइंट। अच्छा, अब एक और सेटिंग्स है, परमिशंस। यहाँ पर मैं साइट एडमिन बता सकता हूँ। व्हाट आर साइट एडमिन्स? साइट शेयरपॉइंट साइट एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिनके पास साइट की तमाम परमिशंस, फीचर्स, इनेबल डिसेबल की परमिशंस हैं। दे हैव द फुल कंट्रोल ऑन द साइट्स। और दीज आर द साइट ओनर्स, जो कि ऑनर लेवल परमिशन हम लोगों ने डिस्कस की थी, वो तीन रोल डिस्कस किए थे पहले, मेंबर्स और विजिटर्स। ठीक है। अच्छा, ये एक ग्रुप है बाय डिफॉल्ट ऑफिस 365 में, एवरीवन। It means that all the users in your organization, either those are part of your organization, और मैं इसको देखूं, यहाँ पे मुझे मॉडिफाई करने का ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ से मैं ऐड करता हूँ, मैं वापस साइट बल्कि साइट परमिशन में जाता हूँ। यहाँ से मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं विजिटर में आता हूँ, मैं यहाँ पे एक ग्रुप है, उससे मैं अलाउ कर देता हूँ एवरीवन। अच्छा, यहाँ पे मैंने डिसेबल किया हुआ है एवरीवन को। ये नॉर्मली दो ग्रुप्स आते हैं, यहाँ यू कैन सी है एवरीवन एक्सेप्ट एक्सटर्नल यूजर, और एक और ग्रुप होता है एवरीवन। आई थिंक मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है अपने टेनेंट के ऊपर उस ग्रुप को। कोई शायद माजी में कोई टेस्टिंग वगैरह कर रहा होगा, तो वो अलाउड नहीं है। अदरवाइज एवरीवन और ये दो सेपरेट टाइप के ग्रुप्स हैं। एवरीवन एक्सेप्ट एक्सटर्नल यूजर्स नाम से लगता है कि तमाम यूजर्स विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन आर पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, और जो एवरीवन है उसमें तमाम के तमाम यूजर्स और गेस्ट यूजर्स तमाम वो उसका पार्ट होते हैं। ठीक है, और ये इनके मैनुअली आपको यूजर्स विजिटर्स के लिए ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये ग्रुप यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक, ये तीन ग्रुप्स हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर जो है, अगर आप एज ए साइट ऑनर है, तो आपको जो परमिशन, साइट परमिशन से अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, कुछ एरियाज एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं जो कि आपको नजर नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल साइट कंटेंट में जाता हूँ। नाउ आई विल गो टू द साइट सेटिंग्स। अगर मैं जो है साइट एडमिशन, साइट कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होऊंगा, तो मुझे ये पूरा पोर्शन नजर नहीं आएगा। इसमें साइकिल बिन है, सेकंड लेवल साइकिल बिन है कि आपने जो भी फाइल डिलीट की वो यहाँ पे मुझे जो है नहीं मिलेगी, वो उसका एक्सेस नहीं मिलेगा साइट ओनर्स को, आपको साइट कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना पड़ेगा। नॉर्मली शेयरपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर जो आपको ग्रुप्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर, the person who have the SharePoint admin license, admin role, is a part of this SharePoint service administrator group. These are the default group of Microsoft 365, and these are the all the global admin or any other admins are part of this one. Then like global admins and SharePoint are part of the company administrator group. So those are by default the एडमिन पार्ट। एंड अच्छा, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स मैंने ऐसी भी देखी थी सिनेरियोज के, कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे हाईली सिक्योर कंटेंट है, दे डोंट वांट टू शेयर इट विद एनीवन। तो उन सिनेरियोज में हम लोगों ने जो है ग्लोबल एडमिन से कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर इनका निकाल दिया, और जो उस डिपार्टमेंट का जो कोई भी एडमिन है उसे यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए साइट ओनर्स के अंदर भी कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, आप ये भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप इनकी ये जो साइट एडमिनिस्ट्रेटर है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, बट आप जो साइट सिक्योरिटी है वो यहाँ से मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आता हूँ साइट सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे देखें तो साइट कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं इफ यू आर ए साइट कलेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर। बाकी आप यहाँ से इनको रिमूव कर सकते हैं, और साइट परमिशन में आएंगे। ये डिफॉल्ट ग्रुप्स हैं आप। अच्छा, इसके अलावा ग्रुप्स क्रिएट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू वांट टू क्रिएट कस्टमाइज्ड ग्रुप फॉर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज लाइक एचआर ग्रुप, इसमें आपने एचआर के लोग ऐड कर दिए, उनको एक स्पेसिफिक फोल्डर पे परमिशन दे दी।
आपने जो फाइनेंस का ग्रुप क्रिएट कर दिया, उनको फाइनेंस के ग्रुप पे परमिशन दे दी, ठीक है। अब मैं आता हूँ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, कुछ चीजें आपको बतानी थी डॉक्यूमेंट शेयरिंग के हवाले से, चीजों के हवाले से। फॉर एग्जांपल यू हैव ओवरराइड दिस फाइल, आपने इस फाइल में काम करना है, तो यू कैन चेक आउट द फाइल, चेक आउट दिस फाइल। अब ये ग्रीन मार्क इसके ऊपर आ जाएगा एक। अब ये देखें तो ये फाइल जो है ना, ये एक चेक आउट, ये फाइल भी रेड साइन के साथ आ रही है। ये अच्छा, इसमें ग्रीन नहीं किया इसने, क्योंकि जो पुराना वर्जन जो मैंने देखा था उसमें वो ग्रीन था। तो ये आपको ये बता रहा है कि द फाइल इज चेकआउट, और डिस्कार्ड चेकआउट कर सकते हैं कि आपने चेंजेस नहीं करनी है। चेकिंग करेंगे तो मैं इसे चेकिंग कर देता हूँ, ठीक है। Great. मैंने कमिट ऐड कर दिया। अच्छा, मैं इसमें आता हूँ, इसके वर्जन चेक करता हूँ कि भाई इसमें कौन सा वर्जन है। तो देखिए मैंने इसको भी मॉडिफाई किया था, इसने मेजर वर्जन को ऐड कर दिया, और कमेंट्स में भी चीज आ रही है। अगर मैंने व्यू करना है तो कोई भी डॉक्यूमेंट में पुराना वर्जन भी व्यू कर सकता हूँ, रिस्टोर भी कर सकता हूँ इसको, और इसको व्यू भी कर सकता हूँ। और डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी लेवल पे हम लोग जो है, तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी की सेटिंग्स के अंदर, वर्जनिंग का। आप वर्जनिंग डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। नो वर्जनिंग इसका मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट आएगा ओवरराइट करेगा तो पुराना वर्जन अवेलेबल नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट क्रिएट मेजर वर्जन, यानी कि मेजर वर्जन उसको बाय डिफॉल्ट ऐड हो रहेंगे व्हेन एवर फाइल इज ओवरराइट, कोई भी चेंजेस होंगी, ठीक है। तो ये माइनर वर्जन भी होते हैं, जब भी कोई यानी कि ड्रॉप वर्जन या कोई स्मॉल चेंजेस लोग सेव कर रहे होते हैं तो माइनर वर्जन के तौर पर भी सेव होते हैं। And who should see- अच्छा ये देखें अब कि ड्राफ्ट वर्जन कौन देख सकता है। ये आप सारी परमिशन यहाँ पे यानी कि जो है वो कर सकते हैं। और ये रिक्वायर्ड चेक इन चेकआउट भी कर सकते हैं कि जब भी मॉडिफाई करना हो तो यूजर ने लाजमी उसको जो यूजर है वो दे दे हैव टू जो है चेक आउट द फाइल बिफोर मॉडिफिकेशन। अभी राइट नाउ हम लोग इस फाइल को जो है, जो कोई भी फाइल थी, अगर मैं इसे ओपन करता हूँ इसको डायरेक्टली यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, ये ब्राउजर्स के अंदर से, ठीक। अच्छा, these are the details. If you have any query on the security side, please let me know. Uh, and now we are jumping back to the slide. You can see my screen now. We just now went through the security settings, security management at the tenant level, and also at the site level, that how to manage permissions for the sites, and how to make all these changes. सो नाउ अच्छा, अब ये एक एरिया था शेयरपॉइंट लेवल पे सिक्योरिटी की मैनेजमेंट के लिए। सिमिलरली वी कैन आल्सो मॉडिफाई द सिक्योरिटी सेटिंग्स इन द डॉक्यूमेंट एट वन ड्राइव, बिकॉज व्हेन यू आर यूजिंग वन ड्राइव, आपके पास यू आर द ओनर ऑफ द वन ड्राइव, आपके पास उसके डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। यू कैन आल्सो मैनेज द परमिशन फॉर द फोल्डर्स, आप विद इन टीम भी शेयर कर सकते हैं स्पेसिफिक फोल्डर, ठीक है। वन ड्राइव के अंदर भी जो कंटेंट जो सेव होता है वो एज ए डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी ही सेव होता है, ठीक है। अब आते हैं देयर इज अनदर वे ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग कंटेंट, यानी कि जो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज अगर आपने वो लगानी है डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो किस तरीके से करनी है, वो है दोज आर कॉल्ड सेंसिटिविटी लेवल्स। अब ये है टेनेंट लेवल पे अवेलेबल हैं, आप इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन के अंडर आ जाते हैं कि यू कैन आल्सो प्रोटेक्ट द जो है कंटेंट विद इन योर साइट्स एंड ग्रुप्स एंड टीम्स आल्सो, कि आप जब क्रिएट कर रहे हैं कि देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, कि आप उसको पब्लिकली कुछ अलाउ करना चाहते हैं, कुछ यू वांट दैट सम कंटेंट और सम साइट्स और सम ग्रुप्स, और लाइक कोई टीम भी है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, you only want that only your organization members can be part of that, और जो है या फिर आपके जो है गेस्ट हैं वो भी उसमें आ सकते हैं। यू कैन डिफाइन दैट यूजिंग सेंसिटिविटी लेवल्स, कि अपने पॉलिसीज बना दी हैं, उन्हें वो असाइन कर दिया है। सिमिलरली फॉर कंटेंट, देयर कुड बी अ टाइप ऑफ कंटेंट व्हिच इज हाईली सिक्योर्ड, देयर कुड बी अ टाइप ऑफ कंटेंट व्हिच आर सेमी सिक्योर्ड, यानी कि आप उससे गेस्ट यूजर से एक्सेस कर सकते हैं, but they can only access that content from the web devices, from unmanaged devices on web browser only.
और you can also restrict them कि they cannot access it from unmanaged devices, and they can only access the content which are domain joined devices. So वो तमाम के तमाम जो है आप वो देख सकते हैं ये जो है सेंसिटिविटी लेवल्स में। लेट मी चेक, अगर मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसके ऊपर दिखा सकूँ, थोड़ा सा कोई ओवरव्यू मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। अच्छा, मैं आता हूँ इसके ऊपर। अच्छा, इसके अंदर मैं टीम्स को खोलता हूँ, आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं टीम क्रिएट करता हूँ फ्रॉम स्क्रैच। ये पहले तो मुझे पता है कि सेंसिटिविटी लेवल कौन सा है। ये मैंने डिफरेंट लेवल्स क्रिएट किए हुए हैं। ये लेवलिंग मैंने खुद की है ताकि मेरी अंडरस्टैंडिंग रहे। प्राइवेट इंटरनल यानी कि प्राइवेट टीम है जिसमें यानी कि मेंबर्स मैं मैन्युअली ऐड करूंगा और ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन वाइज होगी। प्राइवेट एक्सटर्नल यानी कि प्राइवेट चैनल जिसमें यूजर्स विल बी एडेड, बट एक्सटर्नल गेस्ट यूजर्स भी हो सकते हैं। प्राइवेट सिक्योर लेवल फॉर प्राइवेट टीम्स फॉर इंटरनल यूजर्स विद नो फाइल एक्सेस ऑन अनमैनेज्ड डिवाइसेस, कि अब इसमें फाइल एक्सेस की पॉलिसी भी ऐड कर दी है कि अनमैनेज्ड डिवाइस से जो है उसमें जो भी फाइल होगी वो अनमैनेज्ड डिवाइस से एक्सेस नहीं हो सकती। सिमिलरली ये पब्लिक इंटरनल की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन व स्ट्रीम है जिसमें जो है इंटरनल कोई भी बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन को ऐड हो सकता है। ठीक है, कि क्या कंटेंट डिफरेंस आता है, क्योंकि अभी ये मैं ब्राउजर में एक्सेस कर रहा हूँ। इसके अंदर एक तो लेवल आ गया हाईली कॉन्फिडेंशियल, यहाँ पे एक वाटरमार्क आ रहा है। ठीक है, अ, और ये एक जो है हेडर टेक्स्ट भी आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ तो इसलिए मुझे अलाउ करा है, लेकिन ये क्योंकि फाइल जो है वो उसके ऊपर नहीं है, डोमेन ज्वाइंट मशीन नहीं है, तो व्हेन आई ट्राई टू ओपन इट, इट विल नॉट अलाउ मी टू ओपन इट। अभी ये मैंने सिर्फ लेट मी शेयर, आई थिंक माय स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड, सॉरी फॉर दैट, आई जस्ट गॉट द मैसेज, सॉरी, लेट मी रिपीट इट। कि मैंने आपको जो टीम्स के ऊपर दिखाया था कि जिस समय एक टीम क्रिएट करता हूँ और व्हेन मैं टीम क्रिएट करता हूँ तो ये सेंसिटिव लेवल जो मैंने क्रिएट किए हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, प्राइवेट इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योर, कि ये जो है इंटरनल टीम्स के लिए, इंटरनल यूजर्स के लिए है। दिस इज फॉर इंटरनल यूजर्स एंड आल्सो द फॉर द गेस्ट यूजर्स, एक लेवल मैंने क्रिएट किया है। और दिस वन इज फॉर द प्राइवेट सिक्योर, यानी कि यहाँ पे अनमैनेज डिवाइसेस से कंटेंट एक्सेस नहीं हो सकता। और दिस इज फॉर द इंटर पब्लिक इंटरनल, इट मींस एनीवन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन कैन जॉइन दिस टीम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड टीम्स के लिए हम लोग ये पॉलिसी क्रिएट की थी। और मैं सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं जो है अगर जिस समय पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन वाइड की है तो ये इनेबल हो गए। अगर मैंने ये इंटरनल की तो ये ऑप्शन इनेबल हो गया। आल्सो फॉर दिस वन, किसी प्राइवेट टीम्स ही यानी कि एक्सटर्नल पब्लिक यूजर्स वो अवेलेबल नहीं, वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर आके टेनेंट में आके मैंने सेंसिटिविटी क्लिक किया था ताकि हम लोग जो है वो सॉरी कंप्लायंस पे जाते हैं, ताकि हम लोग पॉलिसीज को सेंसिटिविटी लेवल्स को भी देख सकें। और मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा था कि मैं टीम में आया हूँ, इसके अंदर मैंने यहाँ पे जो है ऑलरेडी प्राइवेट एक्सटर्नल मैंने ये इसकी पॉलिसी है। इसके अंदर फाइल्स के ऊपर जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ फाइल्स आ रही हैं, हाईली कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, ये सेंसिटिविटी लेवल्स एंड डिफरेंट जो कि अप्लाई किए हुए हैं। और मैं इसके अंदर आऊँ तो मॉडिफाई करूँगा इसकी प्रॉपर्टीज को, कैन आई मॉडिफाई फ्रॉम हियर। अच्छा, मैं शेयर पर मॉडिफाई कर सकता हूँ, यहाँ से नहीं कर सकता। अच्छा, मैं अगर इस फाइल को ओपन करूँ विद इन टीम्स, क्योंकि ये एक अनमैनेज डिवाइस है और लेकिन मैं एक वो जो है ये ऑर्गेनाइजेशन यूजर हूँ, इट अलाउड मी टू ओपन इन ब्राउजर। बट ये कह रहा है हाईली ये कॉन्फिडेंट, ये वाटरमार्क इसके अंदर एक आ रहा है, एक हेडर आ रहा है इसके अंदर, और ये मेंशन भी किया हुआ आ रहा है। अब इसमें ऑप्शन आ रहा है ओपन डेस्कटॉप ऐप, अगर मैं इसमें खोलूंगा तो मुझे ये जो है इट विल नॉट अलाउ मी टू ओपन बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन पॉलिसी अप्लाइड ऑन द डॉक्यूमेंट, बिकॉज आई एम यूजिंग एन अनमैनेज्ड डिवाइस व्हिच इज नॉट ज्वाइंट विद दिस डोमेन, टेनेंट डोमेन। ठीक है, अब आते हैं, वी लेट्स कम टू द sensitivity levels here। मुझे दीजिएगा, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट इज चेंजिंग and positions of the components। पहले लास्ट टाइम इधर पे जो सेंट्रल लेवल के नाम से जो अवेलेबल थे, कि आई एम नॉट यूजिंग देम ऑन डे टू डे।
यहाँ पे अगर हम आएंगे तो इसमें आ रहे हैं लेबल्स आ रहे हैं। ये इसका ये डेस्कटॉप है कि क्या स्ट्रक्चर है, और क्योंकि इसमें कोई कंटेंट नहीं है तो इसलिए ग्राफ्स वगैरह होते हैं वो नहीं है। इसमें कुछ लेबल्स क्रिएट किए हुए हैं मैंने। हम अच्छा हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं रन टाइम पर। और मैं अगर आपको एग्जिस्टिंग कोई एक दिखा देता हूँ, ये मैं एडिट करता हूँ इसको। तो ये इसका नाम रखा है, डिस्क्रिप्शन लिखी है कि कौन है, और इसमें जो है यूजर्स के लिए है, और ये किन पे चलता है, फाइल्स पर, ईमेल्स पर, ग्रुप्स एंड साइट्स। अच्छा ग्रुप्स अगर साइट्स ये अगर ये डिसेबल होगा तो फिर ये वाला ऑप्शन यहाँ पे यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये अगर ये फाइल बेस्ड ही हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है। अच्छा इस फाइल्स इंटरप्रेट करनी है, इनकी फाइल जब जाएंगी या मार्क को लगाना फाइल के ऊपर, जिसमें मैंने इसमें मार्क लगाता हूँ। ठीक है, अब मैंने मार्किंग को इनेबल किया था। कंटेंट मार्किंग में क्या क्या आ सकता है, वाटर मार्क ऐड करना है मैंने, हेडर ऐड करना है, फुटर ऐड करना है, जब भी इनकी जिन डॉक्यूमेंट से भी अप्लाई होगा। मैं मार्किंग अप्लाई नहीं कर रहा। ऑटो लेबलिंग भी इसमें डिफरेंट किया, जब भी फाइल जाए तो ऑटो लेबलिंग किस तरह से करनी, डिफरेंट पॉलिसीज अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसमें ग्रुप एंड साइट्स हैं कि उनमें क्या क्या अलाउ करना है, कौन कौन से, यानी कि एक्सटर्नल यूजर एक्सेस सेटिंग्स जो है क्या होंगी चीजें, इसके ऊपर वी कैन डिफाइन है। एंड आफ्टर दैट के प्राइवेसी सेटिंग क्या होगी, पब्लिक है या विद योर ऑर्गेनाइजेशन है, और टीम और ग्रुप कैन सेट द प्राइवेसी सेटिंग्स। जो भी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन वाइज जो आपने करना वो इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो गेस्ट एक्सेस को अलाउ करना है नहीं करना वो भी यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अगर मैंने ये अलाउ बंद कर दिया, बेशक वट एवर द नेम ऑफ द लेबल, इट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट। ठीक है, these are the details of the sensitive labels for protecting content on emails, on OneDrive, or on Teams, or also on the SharePoint side. Let me know if you have any feedback on the today's session. I'm just wrapping up. Let me quickly share the slide again if we have any further. Thank you for joining for the today's session. अगर आपके पास कोई भी queries हो कुछ हो तो you can message me here, or we can discuss it on the next session. So next week we will be having we will be discussing about the shape and list and Power Automate integration. So make sure that you register yourself for the to the event, right, for the next session. Thank you so much.